Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss a very important topic of linear algebra, quadratic forms. Please have a look at the definition first. An expression of the form I equal to 1 to n, j equal to 1 to n, aij, xi, xj, where aij are the elements of the field f, x1, x2, xn are the variables over the field f, then it's called a quadratic form. And when the aij's are the real numbers, then it's called a real quadratic form. हम लोग जो यहाँ पे करेंगे, जितना भी डिस्कशन होगा सारा रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए ही होगा. और एक चीज़, दिस इज़ द quadratic form and every quadratic form can be written as a symmetric matrix. How? See, suppose this is the quadratic form. If we write it as this, then here A is the symmetric matrix. Okay, every quadratic form can be written as a symmetric matrix, and these are the column vectors x1 x2 up to xn transpose. Okay, this is the form. Now one definition more, congruence matrices. A matrix is said to be a congruent to B. A matrix A is said to be congruent to B if there exists a non-singular matrix P. Non-singular means what? Determinant of P not equal to 0, such that we can write A is equal to P B P transpose in this form. Then we write this congruence relation as A is congruent to B. Now congruence relation is an equivalence relation. Equivalence relation means reflexive, symmetric and transitive. All three will satisfy. Okay, this is about the definition. Is basically you have to look at this form. This is the quadratic form, and how we represent it in a symmetric matrix. See one or two illustrations. Suppose f is any function given as x1 square plus a x1 square plus b x2 square plus 2h x1 x2. Okay, suppose we have given this, and you have to write it quadratic. In quadratic form you have to make the symmetric matrix. Then how you will write it? x1 x2, then see whatever be the coefficients of x1 square x2 square, you write it in diagonal form like this, a and b, x1 square x2 square. If it will be in 3 variable, then what you will write? x1 square x2 square x3 square, then it will be 3 cross 3 like that. Okay, and whatever be the coefficient of x1 x2, you just divide it by 2 and write in this, because here x1 square it is x1 x2, and after this x1 x3 x1 x4 like this it will go. Okay, so here 2h divided by 2 is h, and x1 x2 x2 x1, it's a symmetric relation. So here also there is h, and here x1 x2. See, this is the matrix A, x transpose Ax. So this is the way to represent a quadratic form in symmetric matrix form. Okay, it is of 2 variable. You may have a 3 variable form also. I am just telling you the way to form the matrix. You may be given with some numbers here, real numbers, coefficients. Suppose if it is of 3 variables, then x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 like this. Okay, in 3 variables. Then how you will form the matrix? See, it's very simple. If you learn 1 or 2, then you can do many of these types, like a x1 square b x1 square c x3 स्क्वायर. मैंने क्या बोला कि जितने भी x1 x2 x3 स्क्वायर टाइप के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग डायगोनल में लिखेंगे, एंड फिर x1 x2, ये वाला x1 स्क्वायर है, ये x1 x2 x1 x3. ओके, x1 x2 के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो h, x1 x3 के कोफिशिएंट को भी डिवाइड किए तो f, x2 x3 कहाँ आएगा? यहाँ x2 स्क्वायर x2 x1 x2 x1 यहाँ होगा, ये x2 स्क्वायर है और x2
x3. okay, x2 x1 is कोफिशिएंट इज 2h मीन्स h, और यहाँ क्या आएगा x2 x3 का g, इट इज़ x3 x1. x3 x1 मीन्स x1 x3, x3 x2 means x2 x3, and this is x3 square. Now see, it is a symmetric matrix H H B B. Look at this matrix, F F and G G. okay, it's a symmetric matrix. You just have to form the matrix from any given function like fx1 x2. Now come to the very important part of quadratic form, that is value class of quadratic form. Since it's a real quadratic form, we will discuss everything in real form. Quadratic forms can be of can be categorized under value classes. वैल्यू क्लास ही बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वैल्यू क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेफिनेट. हो क्या रहा है कि कोई भी फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, टपल्स ऑफ n फ्रॉम दिस टू r. ठीक है, तो इसका रेंज क्या है, रियल नंबर से सारा. अकॉर्डिंग टू दिस वी विल कैटेगराइज दिस इन 5 और 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेफिनेट. पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, f सपोज कीजिए हम लोग लिख रहे हैं x ट्रांसपोज a x, दिस इज द फॉर्म ऑफ x. ठीक है, when it will be called positive definite, negative definite, positive semi definite, negative semi definite, indefinite. These are the forms or value classes of quadratic forms. First one is this, what is the condition for a matrix to be a positive definite. Suppose f greater than 0 for all x belongs to real numbers except 0. okay, मतलब x के हर रियल वैल्यू के लिए वो f हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, x लेकिन 0 नहीं ले सकते, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इन 3 वेरिएबल्स. ओके, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है 3 वेरिएबल्स में. x1 x2 x3 आर द वेरिएबल्स हियर. नाउ सी, अगर ये हम f कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव. अगर x 0 नहीं ले रहे हैं उस केस में बाकी कोई भी, अगर x1 को -1 कंसिडर करते हैं, x2 को +2, x3 -3, कुछ भी आप लीजिए, ये ऑलवेज f ग्रेटर देन 0 ही आएगा हर कंडीशन में. तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट. पॉजिटिव डेफिनेट के बाद नेगेटिव डेफिनेट देखते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे कोफिशिएंट्स प्लस हों, ऐसा भी हो सकता है लाइक x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, इस तरह का कुछ फॉर्म अगर आता है तो हम देखिए क्या करेंगे. सपोज इन 2 वेरिएबल्स इट इज़ रिटन लाइक दिस. ओके, f इज़ दिस. तो अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये आप बिल्कुल देख के मत सोचिए कि ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, अगर हम अच्छे से गौर करके देखें तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, नथिंग. ओके, इट्स नथिंग बट x1 माइनस x2 स्क्वायर, एंड इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 अदर देन 0. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव डेफिनेट की. नेगेटिव डेफिनेट क्या होता है, हियर f ग्रेटर देन 0 था, यहाँ f लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn माइनस 0. दिस इज मीन्स 0 को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं. 0 को हटा के x के कितने भी वैल्यूज़ के लिए वो हमेशा f नेगेटिव आएगी. f अगर एग्जांपल सपोज कीजिए माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर इन 3 वेरिएबल्स अगर हम ये कंसिडर करते हैं, इस केस में क्या होगा, कोई भी x1 x2 x3 की वैल्यू के लिए इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, यू विल ऑलवेज गेट f लेस देन 0. ओके, दिस इज द एग्जांपल फॉर अ नेगेटिव डेफिनेट. नाउ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट देखते हैं. पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में क्या हो जाएगा, यू जस्ट इंक्लूड इक्वल टू 0 हियर दिस डेफिनेशन. पहले क्या हो रहा था कि वो
हमेशा ग्रेटर देन 0 हो रहा था, x के 0 के लिए हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के केस में f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। मतलब f 0 भी हो सकता है इस केस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेते हैं इन 3 वेरिएबल्स। इन 3 वेरिएबल्स बोलने का मतलब ये एक x3 भी है इसमें, बट वो दिख नहीं रहा है। इसका क्या मतलब कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, ओके। दिस इज़ द रियल form in 3 variables, but here it is 0, so I have written only f is equal to x1 square plus x2 square. This is the example for a positive semi definite in 3 variables. Now suppose अगर यहाँ हम लोग x1 x2 का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इसको हम लोग हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या बोलेंगे कि x1 x2 तो हमेशा 0 होना ही चाहिए अगर f को 0 होना है तो, बट फॉर x3 वी कैन हैव एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x3 का कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू भी हम लोग लेंगे और x1 x2 को 0 लेते हैं तो उस केस में भी हमें f इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। सपोज़ 4 ही ले लिया, x3 का कोई भी वैल्यू लेंगे इट विल नॉट अफेक्ट इट बिकॉज हियर इट इज़ 0, ओके। x1 x2 के लिए 0 ले लेंगे तो f हमेशा 0 मिलेगा। मतलब यू कैन हैव f इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की कंडीशन है। अगर हम लोग पॉजिटिव डेफिनेट की बात करते हैं उसमें हम लोग 0 को छोड़ रहे थे, अगर उसमें f 0 होता भी तो इट विल बी ओनली फॉर ऑल द वेरिएबल्स 0। मीन्स अगर f 0 हो रहा है तो उस केस में सारे वेरिएबल्स को 0 होना चाहिए। कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3 के लिए अगर f 0 हो जाएगा तो वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। फॉर द नेगेटिव पॉजिटिव सेमी डेफिनेट यू कैन हैव नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स, ओके। This is the difference between this. And now say negative semi definite other one. नेगेटिव सेमी डेफिनेट भी सिमिलर वे में f लेस देन 0 था, f लेस देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। और इस केस में भी हमारा सेम एग्जाम्पल चलेगा। अगर हम x3 स्क्वायर हटा देते हैं, दिस इज़ द फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स, हियर इट इज़ 0 x3 स्क्वायर, ठीक है। सेम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर इसके लिए भी हम देखें f इक्वल टू 0 हो जाए, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ x3 का डालेंगे देन इट विल बी 0 फॉर x1 x2 0 एंड x3 एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। ये तो बात होगी डेफिनेट हो रहा है जो भी सब कुछ। अगर मैट्रिक्स डेफिनेट हो नहीं तो उसके बाद आता है एक इनडेफिनेट फॉर्म, ठीक है। दिस इज़ द फिफ्थ वन, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या है, f कैन टेक, इफ़ f कैन टेक positive as well as negative values। मतलब क्या कि इसमें पॉजिटिव हो रहा था, कंडीशन थी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक में था कि इक्वल टू 0 हो सकता है, एक में लेस देन 0 था। अब इनडेफिनेट की जब बात करते हैं उस केस में f क्या हो सकता है, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इट कैन बी पॉजिटिव और सम फॉर अदर वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इट कैन बी नेगेटिव। मीन्स इट कैन टेक बोथ द नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी कंसिडर कीजिए। इस तरह का अगर फॉर्म हम ले लेते हैं तो सपोज़ कीजिए जब x1 x3 की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे और x2 की भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उस केस में, या फिर x1 1 है, x3 भी 1 है एंड x2 इज समथिंग 2, ओके। f क्या आएगा उस केस में, 1 माइनस 4 प्लस 1, देन ये क्या हो जाएगा -2। उस केस में f नेगेटिव है। बट इन द सिमिलर एक्सप्रेशन इफ़ यू पुट सम अदर वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3 यू कैन गेट इट पॉजिटिव एज वेल, ओके। मतलब अगर x1 2 हो जाए, x2 1 हो जाए, x3 1 हो जाए, उस केस में क्या होगा, 4 माइनस 1 प्लस 1। उस केस में इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव मिल रहा है। मेरे बोलने का क्या मतलब है कि सिमिलर एक्सप्रेशन में आपको f की वैल्यू किसी वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स के लिए पॉजिटिव मिलती है, किसी के लिए नेगेटिव मिलती है फॉर सम अदर सेट ऑफ वैल्यूज़, देन इट इज़ कॉल्ड अ इनडेफिनिट फॉर्म, ओके। These are the 5 very important value class of quadratic forms। पहला मैंने बताया पॉजिटिव डेफिनिट, इफ़ f greater than 0 for all x belongs to the real numbers except 0। Second is negative definite, f is less than 0 for all the
real values except 0, then positive semi definite f greater than equal to 0 you can include, and it will be for some non-zero value of the variable it can be 0, expression can be 0. फिर नेगेटिव सेमी डेफिनेट में क्या होगा, सिमिलर वे में f लेस देन इक्वल टू 0 इंक्लूड होगा और उसमें भी f इक्वल टू 0 हो सकता है फॉर सम नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. नाउ फिफ्थ वन इज इनडेफिनेट. If f can take the positive as well as negative values, means the expression can be positive as well as negative, then we call it a indefinite form. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अब हम किसी मैट्रिक्स को कैसे चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है. जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव और समथिंग लाइक दैट. देयर आर सम कंडीशंस टू चेक the matrices. First I would like to tell you about the criterias on eigenvalues. Criteria for value classes. कैसे हम लोग चेक करेंगे बेस्ड ऑन द आइगन वैल्यूज. सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है, इस तरह की कोई मैट्रिक्स गिवन है, ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं हमें बताना है. आइगन वैल्यूज़ पे कुछ कंडीशंस होती है. अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव. ओके, अगर सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव मिलते हैं और इन अदर वर्ड यू कैन से द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन 0. मतलब अगर उसकी डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होगी, मत कोई भी, इसका क्या मतलब है कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एक भी आइगन वैल्यू 0 होगी तो वी विल गेट द डिटर्मिनेंट 0. एक भी आइगन वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा. उस केस में मैट्रिक्स हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट होगी. ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखिए, इसमें क्या है 2 - 0, उसके डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है. उस केस में हम इसकी आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे. आइगन वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, x - 1, x - 2 मीन्स 1 और 2 ही इसके आइगन वैल्यूज़ भी है. उस केस में ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाएगा. ये आइगन वैल्यू की कंडीशन है. अगर इसी में हम लोग देखते हैं कि एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट इफ़ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज 0 एंड अदर्स आर पॉजिटिव. ठीक है, एटलीस्ट एक तो 0 होना चाहिए, अदर सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता. उस केस में हम मैट्रिक्स को पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोलेंगे. ठीक है, और भी क्या कंडीशंस है. नेगेटिव के लिए अगर देखें तो उसमें सारा आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव होगा, उस केस में मैट्रिक्स नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगी. अगर एक भी आइगन वैल्यू एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू को 0 होना है, बाकी आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव होगी, उस केस में नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा. और इनडेफिनेट के केस में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आइगन वैल्यूज़ हो सकता है. ठीक है, ये तो बात हो गई इसके आइगन वैल्यू से रिलेटेड. और भी कुछ क्राइटेरियाज़ है वैल्यू क्लास का फाइंड करने के लिए. उसमें आप ट्रेस देख के बता सकते हैं कि मैट्रिक्स पॉजिटिव है या नहीं. वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी. आज के लिए इतना ही है. ये आप अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को, और इससे जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो ट्राई कीजिएगा. पहले खुद से जो मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसके बाद वाला कंटिन्यू करूँगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. ओके, बाय.